کہ اردو کے لیے بھی جو بیسٹ سے بیسٹ جگہ ہے وہ ہونی چاہیے. تو 18 تاریخ کو جس میں کہ میں اپنے دوستوں سے اور ان سے گزارش کر ٹکٹ خریدیں اور اردو کا ایک حسین پلیچر جو ہماری تہذیب ہے اس کو ہم اپنے گھروں سے اپنی زندگیوں سے نہ کھوئیں, کیونکہ اگر یہ کھو دی گئی تو اس کو واپس لانا بہت مشکل کام ہو جائے گا. تو اس سطحی طور پہ ہمارے ساتھ بزم اردو کے ساتھ انوار ادب جیسی تنظیمیں جڑی ہوئی ہیں, سخن بزم سخن جی جڑی ہوئی ہے, اور آگے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ آگے بڑھتے ہیں اور ہماری اس میں مدد کرتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے پروگرام. تو ایک ہی میسج جو اس میں مدد چاہیے, ہم اس کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. بس گزارش یہ ہے. میں یہیں پہ بات ختم کروں گا اپنی, کیونکہ سننا تو اس پہ رہنمائی لیں گے ہماری ساری کوششوں پہ. غلام علی صاحب کی آپ لوگوں کی سماعتوں کے لیے جناب سعید عالم صاحب. آداب. میں دبئی دوسری بار حاضر ہوا ہوں. پہلی بار ایک عدد پلے لے کے آیا تھا مولانا آزاد, اور دوسری بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مولانا آزاد جس شخص کے عاشق تھے, مرزا غالب. لیکن صاحب مرزا غالب ان نیو ڈیلی, وجہ یہ ہے کہ غالب صاحب نے 1857 میں بھی دہلی نہیں چھوڑا. قرض میں ڈوبے ہوئے تھے. نواب رامپور نے ان سے کہا کہ بھائی آپ تشریف لے آئیے, اور رامپور جو ہے دلی سے بہت زیادہ دور نہیں ہے, اور میں آپ کو 200 روپے ماہانہ دوں گا. غالب صاحب نے کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ صرف 100 روپے دیں اور میں دلی میں ہی رہوں؟ نواب رامپور تیار ہو گئے, اور غالب صاحب نے ان دگرگوں حالات میں بھی دہلی نہیں چھوڑا. اور اگر غالب صاحب سے فیض صاحب کی ملاقات ہو اور فیض صاحب غالب صاحب سے کہیں کہ دیکھیے صاحب, 2 شخصیات کی وجہ سے, خصوصاً ایک تو جگجیت سنگھ اور دوسرے غلام علی صاحب, اب آپ زیادہ جانے جاتے ہیں ہندوستان پاکستان میں, تو آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا تھا مرزا صاحب کہ آپ اپنے اصل جنم کے 150 سال پہلے پیدا ہو گئے تھے. یہ آپ کے ساتھ اس نے معاملہ بگاڑ دیا. تو اب وقت آیا ہے کہ آپ کو دوبارہ جنم لینا چاہیے. اور وہ غالب صاحب کو کہا جائے گا کہ بھائی دیکھیے آپ دوبارہ جنم لے سکتے ہیں, لیکن صاحب وہ ہندوستان جو ہے, اب ہندوستان اور پاکستان میں بھی جانا جاتا ہے. بنارس بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ دوسرا جنم لے سکتے ہیں, لیکن وہ بضد ہو جائیں گے کہ بھائی میں دوسرا جنم لوں گا تو دلی میں ہی لوں گا. صاحب سہراب مودی صاحب کہ بھائی میں تو مقروض. نہیں صاحب, اس کے لیے آپ کو بھائی پرسوں یہ تو بھی استھائی ہے. یہ ہے کہ غالب صاحب اگر دوبارہ پیدا ہوں تو کہاں پیدا ہوں گے, کس کی وجہ سے پیدا ہوں گے. اگر فیض نہ کہتے تو شاید نہ پیدا ہوتے. وہ فیض نے ہی کہا تھا کہ بھائی آپ بہت غلط وقت پہ پیدا ہوئے تھے, اب وقت آیا ہے آپ کے تو پیدا ہونے. بہرحال یہ اور اس کو ہم نے کامیڈی کی شکل میں پیش کیا ہے. مختصراً یہ کہ صاحب اگر وہ آ گئے تو کہیں رہنے کا ٹھکانہ نہیں ملے گا. ان کی حویلی سرکار ان کو واپس نہیں کرے گی, کہے گی تم غالب تو ہو لیکن آدھار کارڈ تو لاؤ. اچھا آئیڈینٹی کارڈ کچھ بھی لے آؤ, پاسپورٹ لے آؤ, کچھ تو لاؤ کہ بھائی یہ تو مانا کہ تم غالب ہو. بیچارے ان کو پہ ترس کھا کے بہار کا لڑکا ان کو اپنے کمرے میں رکھ لے گا جو دہلی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے. اور غالب دھیرے دھیرے, غالب بہت ماڈرن تھے, ایڈیپٹیشن, غالب اس کی انگلش پک کر لیں گے, اور اس کی لینڈ لیڈی جو ہے ایک پنجابن ہوں گی. تب آپ تصور کیجئے کہ غالب کا انٹریکشن ایک عدد ہندی اسپیکنگ یا ہندوستانی اسپیکنگ بہاری صاحب سے اور ایک عدد پنجابی لیڈی سے.
फिर वही बात, क्या आलम होगा, क्या हश्र होगा। बहुत शुक्रिया। खालिद न्यू के बारे में बता रहे थे, जो लोग हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उनके लिए अभी भी टाइम बाकी है। 18 को प्रोग्राम है platinumlist.net पे, और टैक की वेबसाइट पे हमारे टिकट्स परचेज किए जा सकते हैं। इवेंट के फर्स्ट शो तकरीबन सोल्ड आउट है, और स्पेशल ऑफर के लिए ईमेल कर सकते हैं info@basmeurdu.org पे। अब हम जिस शख्सियत के लिए यहाँ पर जमा हुए, जिनका हमें पिछले 2 महीने से इंतज़ार है और उनकी इस्तकबाल की तैयारियाँ चल रही हैं, बज़्म उर्दू के तमाम दोस्त यहाँ पे जो मेंबर्स बैठे हैं और सब बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब उस्ताद ग़ुलाम अली साहब से कि हमारी रहनुमाई करें। बहुत बहुत मेरा सलाम अर्ज़ है सबको, आदाब। और बज़्म उर्दू एक ऐसा मुरस्सा चीज़ है जिसे हर आदमी प्यार करता है, जो जी शऊर है, वाह तो जिसको शऊर है। क्योंकि उर्दू ज़बान, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं बेसिकली मैं पंजाबी हूँ मेरी मदर टंग पंजाबी है। और लेकिन मैं 13 साल का था जब मैंने फर्स्ट टाइम लाहौर में रेडियो पाकिस्तान ऑल इंडिया, पहला पूरा ही हिंदुस्तान का वो लाहौर का पहला स्टेशन था, या दिल्ली, ये फर्स्ट स्टेशन है। तो उसमें वो कह रहे थे कि बेटा इसका जो आखिरी शेर है, आखिरी लफ्ज़ है शायद, उसमें म्यूज़िक ख़त्म है, वो इसी तरह पेश करना चाहिए। बहरहाल मैं थोड़ा सा गुनगुना के बताता हूँ। फिर इसी रह गुज़ार पर शायद, फिर इसी रह गुज़ार पर शायद हम कभी मिल सकें, मगर शायद। ये उसका वो था, क्योंकि इसके लिए मैं 2-3 महीने लगा रहा कि किस तरह होना चाहिए। बहरहाल आजकल ये रिवाज भी है कि ग़ुलाम अली साहब आ रहे हैं, या जगजीत आ रहे हैं, या फैज़ी साहब, पर कुछ गाड़ी में बैठे बैठे कुछ हो जाए और पता नहीं क्या हो जाए, मुझे इसी का तो ये इस बात पे हमें ईमानदारी की बात है, गुस्सा आता है, क्योंकि सिंगर को प्रॉपर तौर पे सुनना चाहिए। उसको हर वक्त वो उसकी रिकॉर्डिंग सुनते रहो, कोई बात नहीं, जब वो मिले तो हर जगह पे ना सुनो उसको स्टेज पे सुनो, क्योंकि ये इस पे ही उसका बड़ापन लगता है, सुनने वाले का भी, सुनाने वाले का भी। क्योंकि सुनने वाला भी हमारे नज़दीक उतना बड़ा कलाकार होता है, अगर जिसको सुनना आता है। हर आदमी को आता नहीं है, हर आदमी तो वैसे वो थोड़ा एटमॉस्फेयर से इंस्पायर होता है, लेकिन जो असल सुनने वाला है वो ये सोचता है कि इसने कौन से लफ्ज़ की कितनी इज्जत की है। अगर इसने मुज़महिल कहा है, फ़ज़ा उदास है, रुत मुज़महिल है, मैं चुप हूँ, जो हो सके तो चला आ किसी की खातिर तू, ये भी फराज साहब की गज़ल है। हुई है शाम तो आंखों में बस गया फिर तू, कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तू, कहाँ गया है मेरे शहर के मुसाफिर तो इन बातों को मद्देनज़र रखना पड़ता है ट्यून बनाने के वक्त, कंपोज करने के वक्त। तो मेरा मतलब ये था कि गज़ल गायक बहुत मुश्किल से बनता है, गायक तो बन जाता है आदमी, कुछ भी लेकिन गज़ल गायक बहुत मुश्किल से बनता है। वो काफ़ी लोगों की उसमें कोशिशें होती हैं, उस अकेले की नहीं होती। उसको बताने वाले, उसको प्यार करने वाले बताते रहते हैं कि ये बात ये ऐसा है, ये तरह ऐसा है। मैं एक दफ़ा गा रहा था तो मुझे रेडियो पाकिस्तान में गा रहा था, तो मुझे गाने से पहले स्टेशन डायरेक्टर साहब, इशरत रुमानी साहब उनका नाम था, और अयूब रुमानी भी, वो मुझे अंदर ले गए अपने कमरे में जहाँ वो बैठते थे, जहाँ बड़े अफसर बैठते हैं। तो वो मुझे उधर ले गए कि बेटा जब गाना है तो सूफी तबस्सुम साहब भी बैठे हुए थे उसमें, तो बेटा गाना ही है
तो ध्यान से गाना है, अगर लफ्ज़ों को गाना है तो ध्यान से गाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सारी ज़िंदगी उसी में लगा दी। इस वक्त मुझे 55 साल हो गए गज़ल गाते हुए, 55 साल या 50 साल तो हो ही गए। तो मैंने ज़्यादा दुआएं ली बड़ों की, और अपने वालिद साहब की, अपनी माँ की, तो अपने चाहने वालों की। मुझे अपने चाहने वाले मुझे अपने से भी ज़्यादा प्यारे हैं, इसलिए मैं उनसे भी, उनके लिए मैं भी दुआ करता हूँ, और मेरे लिए और बज़्म उर्दू के लिए मैं ख़ास कर दुआ करता हूँ कि ये इसी तरह बढ़ती फूलती रहे और सुर में रहे, सुर में रहेगा तो और अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद और आपके लिए अल्फाज, और ये महफिल हमारे लिए तारीख़ी है और यादगार है। बज़्म उर्दू की जानिब से, आप तमाम अहबाब की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया के हमारे मीडिया पार्टनर्स जिन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में और ऑडियंस तक पहुंचाने में ताउन किया, उसमें एयरवाई डिजिटल के हम खुसूसन शुक्रगुजार हैं, B4U+ के, और 89.1 रेडियो फोर्स के खुसूसी तौर पर जिन्होंने इस प्रोग्राम को जितनी तेज़ी से इसके पासेस बिके हैं, तो ज़्यादातर 89.1 की वजह से। हंसराज यहाँ मौजूद हैं, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारी बाकी जितने भी मीडिया के दोस्त हमारी दावत पे यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और आपकी मोहब्बतें हमेशा हमारे साथ होती हैं। उर्दू अखबार जो हमारा स्पॉन्सर है, उनके लिए हमारी काफ़ी सारी दुआएं भी हैं। नया ये अखबार है और उर्दू को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। इसके साथ साथ K2 92 और समा PTV और सिंध PV और जितने हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं जो हमेशा से बज़्म उर्दू के हर प्रोग्राम में हमारी सपोर्ट करते हैं, आप सबका मैं इंतहाई मशकूर हूँ। क्योंकि थोड़ा सी ताख़ीर हो चुकी प्रोग्राम में, देर से शुरू हुआ, तो शायद हम सवाल जवाब नहीं कर सकेंगे इस टाइम पे। खाने के बाद जो है वो मेरे ख्याल से एक लफ्ज़ मैं और बोलना चाहूँगा, मैं और भी थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा सा तारुफ राय देता हूँ कि मैं ये बात आगे चलाना चाह रहा था कि गज़ल आगे लेके चलो। और मेरा इस वक्त बेटा भी बैठा है, आमिर गुलाम अली, मेरे सामने उठ के खड़े हो, सलाम करो सबको, आदाब करो। और मेरे भाई का बेटा भी बैठा हुआ है, वो जीशान, उसको भी शान, हम इसको शानी बोलते हैं। और इनके लिए इनको भी मैंने यही कहा है कि ख़ास करके आमिर को मैं और इससे बड़े को भी कहते रहता हूँ कि अगर लफ्ज़ को गाना है तो फिर लफ्ज़ को तमीज़ से गाना है, अगर नहीं उसको ध्यान से गाना तो बिल्कुल ना गाओ, अगर गाना है तो ध्यान से गाओ। तो वरना किसी को भी प्यार करना है तो सही तरह से करो, किसी फ़न को प्यार करना है तो सही तरह से करो, लफ्ज़ को प्यार करना है तो सही तरह से करो। और ख़ास करके लफ्ज़ों का और मौसीकी का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा है। कि जैसे इंतज़ार है तो पता चले कि कौन से सुर का कौन सा सुर लगाएंगे तो इंतज़ार क्रिएट होगा, इंतज़ार का मकसद बनेगा। तो इस तरह से हम बचपन से लेके अब तक करते रहे, अपने आप को सोचते रहे, बजाय दूसरे को कि क्या कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो तो अपने आप को पहले देखो ना। मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बहु, जिसने पहचाना अपने आप को उसने पहचाना अपने रब को। बेशक बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे एक छोटी सी तकरीब है, कुछ हमारे बड़े ही खुसूसी मेहमान जो हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत लोगों को और यहाँ पर जमा नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कुछ अर्ज करना चाहूँगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम कर्मफरमाओं की जिन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत से याद किया, खासतौर पर रेहान साहब की, बज़्म उर्दू के तमाम अरकान की। ये मोहब्बत किसी भी फनकार के लिए बहुत बड़ा सरमाया होती है, बेबहा मता होती है, और हमारी दुआ है कि ये बज़्म इसी तरह होती रहे। खासतौर पर जनाब गुलाम अली साहब को अपने रूबरू देखना ऐसा है जैसे कि कोई ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाए, कोई बंद लोगों की फरियाद चुपके से शर्त कबूलियत पा ले। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए, और रेहान साहब मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। अगर शेर के हवाले से कहना चाहूँ तो गुलाम अली साहब के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ऐसे फनकार बरसों में नहीं सदियों में पैदा होते हैं। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम,
और ये भी कहना चाहूँगी, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल तक पहुँचते हैं एक दो, अहले ज़माना कद्र करो, नायाब ना हो कामयाब है हम। पूरी वज़न के लिए, पूरी टीम के लिए दुआ के साथ यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोग भी बहुत कामयाब होते हैं जो अपनी पूरी तवानाई उर्दू की मोहब्बत के लिए, उसे फ़रोग़ देने के लिए, उसे परवान चढ़ाने के लिए सर्व कर देते हैं। मजरूर सुल्तानपुरी के इस शेर के साथ आपको मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगी, तहसीन करना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पाया ने शौक, खाद से गुल और गुल से गुलस्तां बन गए। तो इसी तरह सलामत रहें, आबाद रहें, परवान चढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सबिता यास्मीन साहिबा। बज़्म उर्दू की तरफ से ये यादगार दोहे से पास पेश किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया खालिद अज़मी साहब और दूरदर्शन उर्दू से। ये वो लोग हैं जो उर्दू के लिए अपनी अपनी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और ऐसे कारनामे अंजाम दे रहे हैं जिनकी वजह से उर्दू आइंदा नस्लों तक पहुँच गई। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ये जो टीम है जो कल ये दोनों प्रोग्राम आप तक पहुंचा रही है और बहुत मेहनत की है सारी टीम ने। थैंक यू वेरी मच। अब ये अनफॉर्मल निश्चित है आप सब लोगों के लिए खाना रेडी करना। सर आप क्या कहेंगे, आपकी मोहब्बत में आए हैं सर सारे, क्या कहेंगे इस इवेंट पे जो कि उर्दू को जिंदा रख रहा है, उस तरह की इवेंट होनी चाहिए? इसमें क्या कहेंगे, क्या कहना है, इसका क्या कहने, क्या कहना है, वाह, इसको कहते हैं क्या कहने। हाँ जी, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उर्दू अदब के लिए उर्दू बज़्में क्या हुआ जी जी आप थोड़ा इस तरफ हो जाते हैं सर, इस तरफ हो जाइए, इधर सेंटर में आ जाए ना, खत्म हो गई बात। ऐसे ही होता है इस तरह के कामों में। इस तरह सर आपके तावन का शुक्रिया। हाँ जी जी हाँ जी तो कल के फरमाए। हाँ जी जी कल के इवेंट के बारे में यही है कि ये यूनिक इवेंट है, यूनिक है। ऐसे इवेंट यूनिक होते हैं क्योंकि उर्दू अदब के लिए आजकल जो ज़माना है तो उर्दू को बहुत मुश्किल समझा जाता है, हालांकि सबसे प्यार वाली ज़बान जो है वो उर्दू है। उर्दू अदब को इस्तेमाल करना और उर्दू अदब का के लिए काम करना एक ऐसा ही है जैसे कोई सवाब का काम है। हाँ, मैं यही कहूँगा क्योंकि इस वक्त हेलो हाय तो होती ही रहती है, लेकिन आदाब और मुनसफ होना इस बात का कि ये मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि उर्दू अदब ऐसी एक ज़बान है जिसको से पूरा उर्दू अदब में, अरबिक में और पर्शियन में सबसे ज़्यादा इसको पसंद किया गया है जी। तो इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि बज़्म उर्दू को इतना फ़रोग़ मिले कि ये हर कूचे में, हर घर में ये उसी तरह बसे जैसे हमारे ज़हनों में बसा हुआ। सर ये 14 अगस्त और 15 अगस्त भी गुजरी है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप कुछ? दोनों ममालिक जो आज़ाद हुए हैं, 14 अगस्त और 15 अगस्त भी गुजरी है, तो ये भी अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छी गुजरी है। हम सब के लिए दुआ करते हैं। हाँ जी, और फिर वही बात कि जो ज़बान का मसला है वो प्यार जो जिसमें प्यार हो वो सबसे अच्छी बात है। सर बज़्म उर्दू में कोई भी प्रोग्राम होता है अपनी गेस्ट से ये सवाल करते हैं कि आजकल की जनरेशन जो है, जी हाँ, आपको लगता है उनका उर्दू में अभी तक लगाव है? नहीं लगता मुझे। जो मेरा मुशाहिदा है वो ये है कि आजकल बहुत कम उर्दू को ध्यान रखा जाता है, लेकिन मेरी
ख्वाहिश भी ये है और इल्तमास भी ये है कि इसको गौर से इसकी तरफ गौर करें और आगे आने वाले लोग जो हैं उर्दू अदब को सीखें और पढ़ें ताकि उनमें इंसान को बहुत बड़ा इंसान बनाती है। आजकल के जो शायर हैं वो दस्ती उर्दू का इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो जंग शायर हैं? ऐसे हैं जो शायर हैं वो तो फिर भी बहुत अच्छा उर्दू का अदब इस्तेमाल कर रहे हैं और प्यार करते हैं, लेकिन आम आदमी जो ज़्यादा आजकल के माहौल का शायर है वो इतना प्यार नहीं करता। उसके लिए भी दुआ करते हैं हम लोग कि वो भी पूरे उर्दू अदब को इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।